किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट. Listen students, yesterday we have discussed the various types of market. Basically we have to focus on the perfect competition market because this is only this topic is there in your syllabus. Okay, but I want to explain you some other types also, but not in detail, but in short form I want to introduce you with other forms of market also, so that I will going to explain these other forms of market in very short form. Okay student, so don't be worried that it will be come in the syllabus. It will never come in your examination because it is not in your syllabus, but for information or knowledge I will explain you this some other types also. So we have already discussed the perfect competition. Do you having any problem in this topic? Features of perfect competition is clear? Is it clear to you students? Yes, ma'am. Any doubt? Mostly we have to focus on these two topic, features of perfect competition and three vital conclusion. It means the firm under perfect competition is a price taker, not a price maker. These are the two vital topics which we have to discuss first, and you have to clear all these two topics. Okay, so if you are having any problem within these two main components, then you can clear your confusion. If you want to ask anything or you having any query regarding these two topics, the first, the features of perfect competition. Yesterday I have seen some homework, whatever sent by you through Snap homework. Some students have not given right answer. I think they are not fully aware about this topic. Students, कुछ लोगों ने सही आंसर नहीं दिया था फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. तो मैम एक बार शॉर्ट में समझा दीजिए. किसको? अच्छा शॉर्ट में समझाएं. ओके ठीक है, एक बार और मैं इसको समझा देती हूँ बेटा, क्योंकि आपका इन दिस चैप्टर these two topics are very very important. Okay, so listen, the first features of perfect competition. The first feature is, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बुक में ही या कॉपी में कहीं लिख लो. ठीक है बेटा, सबसे पहले ये सुन लो, during your online class you have to keep your book with you, you have to keep your copy with you, pen and all the required item which is necessary during the online classes. ये नहीं कि मैं लिखने के लिए बोलती हूँ तो आप कॉपी ढूंढना शुरू करते हो. नो, you have to prepare with all these things. Okay student, so listen the first feature of perfect competition market. That is, देखो, so the today's topic is features of perfect competition market. Perfect competition market. Board is visible to you? Board दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Okay, so listen, the first feature is large number of buyer and seller. Large number of firms or seller. सबसे दो फीचर है, large number of firms and means large number of seller. Second is large number of buyer means large number of buyer means consumer. Okay, तो पहला फीचर है large number of buyers and seller. आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो. In your book it has been given in the two parts. Large number of firms means there is, in this type of market, large number of producers are there, so many firms are there, so large number of buyer and large number of seller. So if any firm want to exit from the market, there is no effect on the supply. ठीक है, अगर कोई firm इसमें से exit करना चाहता है, there is no effect on the supply because large number of sellers are there. बहुत सारे seller हैं. अगर किसी को loss हो रहा है तो they can easily exit from the market because there is no restriction, and in this situation there is no effect on supply. ठीक है, तो पहला हुआ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर. मतलब
इस तरह के गुड्स के बहुत सारे सेलर हैं। तो अगर कोई एक सेलर को लॉस हो रहा है और दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से निकल जाना चाहता है, वो इस चीज का प्रोडक्शन अब नहीं करना चाहता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन सप्लाई। ये नहीं कि सप्लाई घट जाएगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर ऑल्सो, ठीक है, इस तरह के गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं। थर्ड जो आपका है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर का मतलब ये नहीं कोई कह सकता है बिकॉज प्राइस विल नॉट इन्फ्लुएंस बाय द बायर। यहाँ पे प्राइस ना तो सेलर इन्फ्लुएंस कर पाएगा और ना बायर इन्फ्लुएंस कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है। तो इंडिविजुअल बायर अगर कोई नहीं खरीदना चाहता इस गुड्स को, तो वो जिस तरह सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है प्राइस को, मार्केट को, सिमिलरली बायर कैन ऑल्सो, क्या बेटा एग्जाम्पल भी बताएं। जो आप देखो, जो भी गुड्स अभी आप देखते हो मार्केट में, ज्यादातर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो एक जैसे दिखने वाले, सिमिलर दिखने वाले, आइडेंटिकल एक जैसे दिखने वाले गुड्स, ठीक है, ऐसा नहीं एक जैसे दिखने वाले गुड्स जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचने वाले लोग हैं, जनरली तुमने देखा होगा कि वो सिमिलर प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है। अगर कोई ज्यादा प्राइस पे, मान लो सम पीपल इज सेलिंग एप्पल एट 200 रुपीज एंड सम आर सेलिंग द सेम एप्पल एट 500 रुपीज, तो क्या खरीदेगा लोग 500 रुपीज में उसी सेब को जो वो 200 रुपीज में दूसरा बेच रहा है? बोलो। नो मैम। नहीं, बिकॉज हाँ, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ सेलर इज देयर, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सेलर आई विल शिफ्ट टू अनदर। और जो ज्यादा प्राइस पे बेचेगा उसके मार्केट में उस चीज, उस सप्लायर का गुड्स बिकेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि इंडिविजुअल सेलर कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस और मार्केट, एंड इंडिविजुअल बायर कैन ऑल्सो नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। ना तो बायर इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट को और ना ही सेलर कर सकता है, खासकर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे बहुत महंगा पड़ा है, मैं यहाँ से लेके आया हूँ, मुझे बहुत घाटा हो रहा है, पेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल दोस, और ये कह के वो बेचना चाहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पीपल विल नॉट रेडी टू बाय दैट, बिकॉज वॉट एवर गुड्स इज देयर इट इज इन ह्यूज फॉर्म, ह्यूज सप्लाई, बिकॉज सो मेनी फर्म्स आर देयर, सो मेनी सेलर्स आर देयर। तो ये बहुत सारे सेलर होने की वजह से कोई भी मार्केट में मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ये समझ में आई बात बेटा? लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर है। नाउ द थर्ड वन, होमोजीनस प्रोडक्ट। होमोजीनस का मतलब होता है बेटा एक जैसा दिखने वाला। अब ये बताओ, अगर कोई टोमेटो सेल कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कोई एक टोमेटो बोलेगा अरे मेरा टोमेटो डिफरेंट है, ये बिल्कुल बनाना शेप में है, ये बिल्कुल कद्दू जैसा दिखने वाला है। इज इट पॉसिबल? ऐसा होगा? नो मैम। नहीं। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, No, एक ma'am. जैसा साइज और यूनिट में दिखने वाला, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, दिस इज ऑल्सो वन फीचर एंड इंपॉर्टेंट, ये निकल के आता है। सो इट हैज, बायर विल नो रीजन टू प्रीफर द प्रोडक्ट ऑफ वन। ये कोई भी बायर प्रीफर नहीं कर सकता कि मेरा अलग तरीके का है, मेरा स्पेशल है, इसलिए ये इसको मैंने महंगा करके रखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑल द गुड्स आर इन सिमिलर शेप, साइज एंड यूनिट, ओके। नेक्स्ट, perfect knowledge prevailing in the market. Perfect knowledge of what? Perfect knowledge of price. Buyer और seller दोनों को, buyer and seller both are fully aware about the price of that goods. जो goods perfect competition market में बिक रहा है, the buyers are fully aware about the price of those goods. So nobody will take more price. कोई भी सप्लायर ज्यादा प्राइस नहीं ले सकता है, बिकॉज बायर इज ऑल्सो अवेयर अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स, ही इज ऑल्सो नॉट रेडी टू पे मोर प्राइस ऑफ दैट गुड्स। ना तो बायर ज्यादा प्राइस देगा और ना सेलर ज्यादा प्राइस लेगा, बिकॉज बोथ आर फुली अवेयर अबाउट द, दोनों को मार्केट में चल रहे प्राइस का पूरी तरह से जानकारी है। बायर एंड सेलर बोथ आर फुली अवेयर अबाउट द प्राइस। समझ में आई बात? नेक्स्ट है Yes, आपका ma'am. फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री का मतलब, हाँ, एंट्री का मतलब, फ्री एंट्री मींस, टेल मी स्टूडेंट। In perfect Free competition entry means? market. मैम कोई रुकावट नहीं है।
हाँ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, यही होता है। फ्री एंट्री मीन्स नो रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट। यस, वेरी गुड सिस्टी, नो रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। गुड। तो एनीबडी कैन, अगर हमें लगता है कि हम इस मार्केट में घुस के अपना सामान बेच सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन आई विल एंटर इन द मार्केट। इफ आई एम नॉट having satisfaction or I am not getting profit, I will exit from the market, because no one is there who will force us to enter in the market or exit in the market or continue with the market. कोई हमें ये नहीं कह सकता कि एक बार घुस गए हो तो बने रहो, या आप नहीं घुस सकते हो, या आप नहीं निकल सकते हो। So there is no restrictions. If seller face losses, then he can easily exit from the market. If they have proper profit, they are satisfied with their product, they are getting proper profit या normal profit, तो जब उसको normal profit मिल रहा है, they will continue with the market. It depends upon their wish, their desire. If their wish is there to continue with the market, he will continue. If his wish is not continue with the market, he will easily exit. ठीक है? तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई restrictions नहीं है. No one force him. दूसरा, independent decision making and freedom from the checks. देखो, ये वाला थोड़ा ठीक से समझना, क्योंकि अदर मार्केट में मैंने आपको शायद पहले बताया होगा एक बार और, एक ओलिगोपोली मार्केट होता है बेटा, जिसमें लार्ज सेलर्स, जिसमें फ्यू नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस्ड, मतलब काफी रिच प्रोड्यूसर होते हैं, फ्यू, बट देयर नंबर आर इन लिमिटेड। कुछ प्रोड्यूसर होते हैं जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज, जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं वो उनका नंबर कम होता है, लेकिन वो काफी होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, रिच होते हैं। तो सारे रिच हैं, तो आखिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे उतारेंगे? तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के पहले दे फॉर्म अ कार्टेल फॉर्मेशन इज देयर। कार्टेल का मतलब होता है एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट करते हैं कि इतने सीसी का इंजन वाला कार जिसमें ये फीचर्स है, हम इतने प्राइस पे मार्केट में उतारेंगे, एंड ऑल द प्रोड्यूसर ऑफ दिस टाइप ऑफ गुड विल साइन दैट एग्रीमेंट, और उससे ज्यादा पे वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं उतारते। ये फीचर ओलिगोपोली का है। इस तरह का फीचर कार्टेल फॉर्मेशन वाला हम परफेक्ट कंपटीशन में नहीं देखते। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। हमारा इंडिपेंडेंट मतलब, इंडिपेंडेंट मीन्स नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, फ्री। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के जितने भी सेलर हैं, दे टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, मार्केट में हमें रहना है या नहीं रहना है। This type of decisions are taken by themselves. It not because they do not form any agreement. वो कोई agreement form नहीं करते कि जितने भी परफेक्ट कंपटीशन के बायर एंड सेलर हैं वो एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और इतने ही कीमत पे बेचेंगे। नहीं, जो कीमत मार्केट में चल रहा होगा उन्हें उसी पे बेचना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओलिगोपोली में सारे मिलके प्राइस तय करते हैं और उसी प्राइस पे उन्हें बेचना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए दोनों में अंतर, या कोई डाउट है? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स, ये समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब हुआ कि दे टेक डिसीजन वेदर दे कंटिन्यू इन द मार्केट और नॉट, दे डू नॉट हैव टू फॉर्म एनी एग्रीमेंट और कार्टेल। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। देखो, जो भी इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं, उनकी इनपुट्स जो है वो मूवेबल है, वो कहीं भी अवेलेबल होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम इसको कहीं और से ला रहे हैं, या एवरीवेयर दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री कोई अलग से उसके लिए हायर प्राइस चार्ज नहीं करता है, क्योंकि दिस व्हाटएवर इनपुट इज रिक्वायर्ड, इनपुट मतलब जो उसको प्रोड्यूस करने में जो भी फैक्टर्स लगता है, रॉ मटेरियल्स या अदर फैक्टर्स, दे आर अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, वो परफेक्ट मोबिलिटी है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जापान से ये सामान मंगवा के बनाया इसलिए मेरा प्रोडक्ट महंगा है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता है, बिकॉज एवरीवेयर दिस इनपुट्स आर अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का अपने से ये नहीं कह सकता है कि मैं बाहर से मैं
जो मेरा, मैं इसलिए महंगा रखा हूं क्योंकि मुझे इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है. सो दे आर नॉट एबल टू एड एडिशनल चार्ज एज ए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक है, तो एडिशनल चार्ज वो नहीं करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के रूप में. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने देखा है एक और इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस टाइप ऑफ मार्केट इज ए प्राइस टेकर. लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दिस टाइप ऑफ मार्केट इज ए प्राइस टेकर. प्राइस टेकर का मतलब जो प्राइस चल रहा होगा वही हमको मिलेगा, हम अपने तरफ से कोई प्राइस नहीं तय करेंगे. ठीक है, दो तरह का होता है बेटा, एक प्राइस टेकर होता है, एक प्राइस मेकर होता है. तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच सेलर्स आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर. कौन सा मार्केट है जिसमें प्राइस मेकर हुआ करता है? कोई बताएगा? मोनोपोली. मोनोपोली. पोली मार्केट. यस, मोनोपोली मार्केट. और सम लेवल ऑफ प्राइस मेकर होता है मोनोपोलिस्टिक भी, सम लेवल. ठीक है, समझ गए बच्चों? नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई. सो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज ए प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर. अब लिखो एक क्वेश्चन. मान लो आता है कि हाउ कैन यू से, ये जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ए प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर. क्यों प्राइस टेकर क्यों है, नॉट अ प्राइस मेकर? लिखो तो क्वेश्चन. अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन is a price taker. A firm under perfect competition is a price taker. क्वेश्चन लिखो, दिख रहा है? A firm under perfect competition is not a price maker. प्राइस मेकर नहीं है, नॉट अ प्राइस मेकर. क्यों नहीं, क्यों प्राइस मेकर नहीं है? ये दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है? देखो अब दिख रहा है क्वेश्चन, बोर्ड दिख रहा है बेटा? इज इट visible? Yes, ma'am. Okay, write down the question. Why a firm under perfect competition is not a price maker? क्यों नहीं है प्राइस मेकर? फर्स्ट है, पहला आंसर है नंबर, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. लार्ज नंबर ऑफ फर्म. बिल्कुल यही आंसर मुझे चाहिए आपसे. मैं यही क्वेश्चन आपसे दूंगी, आपको स्नैप में ये क्वेश्चन दूंगी. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, so many firms are there. If, ठीक है, अच्छा, if this type of market is not a price maker, then who is price maker? Who is price maker? अगर Monopoly market. मोनोपोली मार्केट. Monopoly market. Monopoly market, ma'am. इनकी ये प्राइस मेकर नहीं है, तो इनके लिए प्राइस कौन बनाएगा? Who will decide the price in this type of market? Market. Markets. हाँ? मार्केट फोर्सेस. कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड. तो व्हाटएवर मार्केट विल डिसाइड, व्हाटएवर प्राइस इज देयर इन द मार्केट, दे हैव टू टेक ओनली दोस प्राइस. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड प्राइस टेकर. क्या इनको कहा जाता है? दे आर कॉल्ड प्राइस टेकर. समझ में आई बात? देखो, तो पहला हुआ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. इट मींस, देखो, इफ व्हाटएवर प्राइस इज देयर इन द मार्केट, ये पहला मैं पॉइंट समझा रही हूं. दिख रहा है ना सबको? एक सेकंड, दिख रहा है बच्चों?
Yes, ma'am. दिख रहा है ना सारा क्वेश्चन? देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स का मतलब so many producers are there. If somebody take more price, whatever price is there in the market, if somebody charge more price as compared to the market price, nobody will, no buyers will buy their goods. ठीक है? Because so many firms are there who will supply. If somebody is not comfortable with the price, whatever price is there in the market, अगर कोई सेलर, कोई प्रोड्यूसर कंफर्टेबल नहीं है, if he faces loss, he is facing loss, अगर उसको लग रहा है कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसमें मुझे लॉस हो रहा है, he will easily exit from the market and there is no effect on the supply. अगर किसी को लॉस होता है, देखो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब हुआ if any one firm exit from the market, there is no effect on the supply. समझ में आई बात? Because large number of firms are there. बहुत सारे फॉर्म हैं, अगर कोई एक फॉर्म हट जाएगा, there is no effect on the supply. Okay student? दूसरा रीजन है homogeneous product. Homogeneous का मतलब, बोलो homogeneous मतलब? Same kind of product. Identical, ठीक है? Identical in nature. Same kind of कह सकते हो. Identical मतलब same shape and size, ठीक है? Homogeneous product means all the firms are selling same type of product, same which are similar in shape and size. Okay? ये इसमें कोई डाउट? थर्ड पॉइंट है unnecessary loss due to lower price fixation. अब ये क्या है? ये दिख रहा है बेटा नीचे वाला या ऊपर लिख दे? Is it visible? बच्चों दिख रहा है? Is it visible to you? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, हाँ ठीक है, ओके राइट डाउन. थर्ड पॉइंट है, लिख लो थर्ड पॉइंट, unnecessary, write down, unnecessary loss due to lower price fixation. Unnecessary loss due to lower price fixation. अब ये क्या है? ये सुनो. If some buyer wants to sell their product, more quantity of their product, अगर कोई सेलर चाहता है कि नहीं हम अपना सारा सामान जल्दी से बेच दें, ठीक है, प्राइस को गिरा के, ठीक है, प्राइस को बढ़ा के तो नहीं कर सकते, प्राइस बढ़ा नहीं सकते, ये आपने देख लिया. लेकिन अगर कोई चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वांटिटी को बेच दें, प्राइस को कम करके, लोग करते हैं ना, प्राइस को गिरा के हम अपना सामान बेच दें, तो he will face losses. ठीक है? Because you know that lower price always attract the buyer. Buyer को हमेशा कम price attract करता है. Simple सा logic है. But if in this situation, in the perfect competition, if seller want to sell their product and lowering their price, he will have to face losses because already they are taking normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट पे ही वो बेच रहा है, एक्स्ट्रा नॉर्मल तो वो ले नहीं रहा है. और एक्स्ट्रा नॉर्मल देयर आर 3 सिचुएशंस ऑफ प्रॉफिट. याद है ना आपको? कौन कौन सा सिचुएशन था प्रॉफिट मेकिंग का? बोलो, किसी को याद है? प्रॉफिट के 3 सिचुएशन. Extra normal, normal and subnormal. Normal and subnormal. Yes, extra normal, subnormal. Very good, Sisti. Extra normal, subnormal and loss. तो एक्स्ट्रा नॉर्मल तो ले नहीं रहा है बिकॉज प्राइस मेकर है नहीं, प्राइस टेकर है. तो सब नॉर्मल प्रॉफिट में बेच रहा है. अगर सब नॉर्मल से भी अपने प्राइस को कम कर दे तो क्या होगा? लॉस होगा. और देयर इज
That is why the curve of perfect competition का कर्व कैसा जाएगा? What is the demand curve of perfect competition? Demand curve का perfect competition का demand curve कैसा बनेगा? याद है ना? याद है? कैसा बनेगा? मिटाते हैं इसको। कैसा बनेगा बेटा कर्व? Listen. किसी को याद है? हम लोग क्या नीचे क्या लेते हैं? इधर क्या लेते हैं? y एक्सिस पे क्या लेते हैं? y एक्सिस पे क्या लेंगे? क्वांटिटी। Price. x एक्सिस पे क्वांटिटी और y एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, तो आप देखोगे कांस्टेंट का मतलब हुआ ये डिमांड कर्व है परफेक्ट कंपटीशन का। बिकॉज़ परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस, मतलब AR इज क्या? पर यूनिट प्राइस। तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा यूनिट बेचने के लिए प्राइस को कम कर दें। ठीक है, सो दिस इज द कर्व ऑफ डिमांड कर्व ऑफ या प्राइस कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, याद रखना ये डायग्राम। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इट मींस विदाउट लोअरिंग द प्राइस ही कैन सेल एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, any quantity, he can sell any quantity at this price only, because if he lower the price he will faces losses। अगर वो प्राइस को कम करेगा he will face losses। पेज नंबर 313 में 318 सॉरी पेज 318 में आपका ये जो कर्व दिया गया है, इस क्वेश्चन के आंसर में वो कर्व भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो दिस नाउ द लेसन इज फिनिश्ड। लेसन ये खत्म हो गया। मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट a product differentiation, every brand produced by a single seller। एक ब्रांड का एक ही सेलर होगा, तो सीधे लिखोगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैव सब्स्टिट्यूट, मोनोपोली मार्केट हैव नो सब्स्टिट्यूट। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, बाकी मार्केट के बारे में भी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन जो अभी आप पढ़ रहे हो, मोनोपोली सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्टिक सिंगल सेलर ऑफ वन ब्रांड, सो सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी इज देयर। ठीक है, और ओलिगोपोली मार्केट में आपका क्या होगा? few number of affluent seller। okay student, so these are the overall summary of this chapter। अब तुम लोग की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। बोलिए, पूछना है कुछ बेटा? क्वेश्चन लिख लिया सबने? Students, have you written the question? Yes, ma'am. Okay, I will give you some sort of objective question, उसको अभी लिखिए। लिखो, define market for a good। Write down, define market for a good। क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन कर सकते हो बेटा? क्या आप वीडियो ऑन करोगे थोड़ी देर के लिए? यस, प्रिया भारती सही आंसर था, सृष्टि का भी। ओके, ठीक है बेटा, थोड़ा सा तुम लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। इफ यू वीडियो ऑन करो, आई वांट टू सी वेदर यू आर राइटिंग और नॉट। ठीक है, कशिश, हाउ आर यू बेटा? Fine. Writing, are you writing? Any Yes, ma'am. query or confusion? No, ma'am. Okay. Riya, are you writing beta? Yes, ma'am. Are you comfortable? Yes, ma'am.
बाकी लोग बोल रहे हैं बेटा, सिल्की, अमन, बॉयज, बेटा तुम लोग भी अपना वीडियो खोलो। आई वांट टू सी योर फेस। बहुत दिन हो गया ना बच्चों से मिले हुए। आई वांट टू सी योर फेस। बच्चों अपना फेस दिखाओ ना बेटा, थोड़ा देखेंगे, खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरे बच्चे अच्छे से हैं। अपना फेस दिखाओ सारे बच्चे। गुड लुकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बेटा, कशफा, गुड लुकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। पेरेंट्स और टीचर को अपने बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं। सो प्लीज शो मी योर फेस वेदर यू आर फाइन और नॉट। आप पढ़ रहे हो कि नहीं, बस मुझे यही जानना है एक्चुअली। सुमित, शिवम, अनंजय, अक्षत, अंकित, शो मी योर फेस। वीडियो ऑन करो, देखना आप सब म्यूट हो जाएंगे। अरे बेटा मैं बताऊं, आप पूरा दिख नहीं रहे हो, आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? आप वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके ही पढ़ना है। रवि रंजन, एम आई ऑडिबल टू यू? अब देखना कोई जवाब ही नहीं देगा। एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. Ma'am. Then why not opening your video? वीडियो ऑन करो ना बेटा। इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। मैं तो यही समझोगे ना कि आप लेटे हुए होगे कहीं। हाँ, कल से सारे बच्चे सुनो, सुबह उठ के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बुक्स और कॉपी लेके प्रॉपर ड्रेस में, ठीक है? आप लोगों का ये जो आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को भेज स्कूल में रखना एज अ रिकॉर्ड, ठीक है? ये शिवम, यस यू आर राइटिंग, ठीक है, दिख रहा है। दामिनी, हाउ आर यू बेटा? दामिनी, पढ़ रहे हो? दिखाओ योर, शो मी योर कॉपी, शो मी योर कॉपी। सारे बच्चे अपनी कॉपी को फोकस करेंगे। इफ यू वांट टू हाइड योर फेस, डजंट मैटर, शो मी योर कॉपी वेदर यू आर राइटिंग और नॉट। गुड, ठीक है।